नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर पूछता है। आज टीम लाहौर पूछता है आवाज बनने जा रही है एक रिक्शा ड्राइवर की, जिसका कसूर ये है कि वो सुबह सुबह अपने घर से निकलता है, मेहनत करने के लिए जाता है और रिज़्क़ हलाल कमाना चाहता है। वो ये चाहता है कि वो अपनी बेवा मां को एक बेहतर जिंदगी दे सके। वो ये चाहता है कि अपनी बीवी, अपनी औलाद, अपने खानदान, कबीले को रिज़्क़ हलाल खिला सके। और इस जुर्म की पादाश में मेरी और आपकी प्यारी प्यारी पुलिस और इसमें मौजूद नाअहल, निकम्मे और नालायक जिम्मेदारान अपनी वर्दी की कलफ सलामत रखने के लिए उस शख्स के घर को बर्बाद कर देते हैं। आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखना चाहूंगा कि किस तरीके से उस पर 10 किलो ड्रग्स जो हैं वो डाल दी जाती हैं और उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी जाती है। इस लम्हे चूंकि हम उसके घर मौजूद हैं और दाखिल हो रहे हैं उसके घर में, समझने की कोशिश करेंगे, उसकी बूढ़ी मां को आपसे मिलवाएंगे। और एक लम्हे के लिए मैं चाहूंगा कि आईजी पंजाब साहब समझिएगा, सीसीपीओ पंजाब साहब समझिएगा कि ये आपकी मां है। जो अल्फाज, जो बात ये करेगी वो आपकी मां बात कर रही है। लेकिन अगर आप ये नहीं समझ पाएंगे तो यकीन माने आप मामले को समझ ही नहीं सकते। उमर की फैमिली के साथ क्या हुआ है और ना हंजार पुलिस के मुलाजमीन ने उसको किस अंधे कुएं में फेंक दी है, आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मां जी, क्या हाल है? ठीक है जी। पहले तो बड़ा अफसोस भी, तकलीफ भी और शर्मिंदगी भी जी। क्या मामला हुआ है? बेटे ने सवेरे उठाया ते काम ते भेजिया है, पहली सवारी चुकी है, मुंडा स्टूडेंट जो बैग पाया सी गल च, और आ रहा है ते ओने छलांग मार दी, इत्थे आके पीछे पुलिस आ गई है। उन्होंने ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਸਿਆ ਮੁੰਡਾ ਦੂਜਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਤੇ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਰਕਸ਼ਾ 'ਚ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਭੱਜ ਕੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵੜ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਈ, ਸੱਚ ਘਰੋਂਦਿਆਂ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਯਤੀਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰੀ, ਗਰੀਬ ਬੱਚਾ ਅਕਲਾ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾ ਕੇ ਖਵਾਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੈਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 15 ਸਟਾਮ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈ? ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ 15 ਸਟਾਮ, ਅਸੀਂ 15 ਸਟਾਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜੀ ਬੰਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਲਈ 15 ਸਟਾਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਆ ਜੇ, 12 ਤੇ 1 ਵਜੇ, 12 ਵਜੇ 1 ਮਿੰਟ ਤੇ 12 1 ਵਜੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਰਾਤ 12 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਂਜੀ, ਯਾਨੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 12 ਵਜ ਕੇ 1 ਮਿੰਟਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭੱਜਦੇ ਰਹੇ, ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਰਚਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਪਰਚਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੁਣ? ਅੱਛਾ, ਪਰਚਾ ਪੜਿਆ ਜੇ? ਪਰਚੇ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਪਰਚੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਕਫ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਵਾਰੀ ਚੁੱਕੀ ਜੀ, ਸਵਾਰੀ ਕੋਲ ਚਰਸ ਸੀ 10 ਕਿਲੋ, ਔਰ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਬਹਿ ਗਈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਸ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਸਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਗੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਕਾ ਆਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਸ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮਾਨ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਫਸ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਨਸਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਕਫ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਪੁਲਿਸ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਮਨਸ਼ੀਆਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਖਬਰੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਰਕਸ਼ਾ ਨਸਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਰਕਸ਼ਾ ਨਸਾ ਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥੀ ਨਸ ਗਿਆ ਤੇ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਫਸ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ, ਮੈਂ ਗਈ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ, ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕਰਨ ਗਈ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਿਕਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਤ ਦਾ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਬੈਠ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਬੈਠ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਬਸ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਬੈਠ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਬਸ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਈ ਹਾਂ ਜੱਜ ਕੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਐਸਐਸ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕੀ ਮੈਂ ਐਸਐਚਓ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਐਸਐਚਓ ਜੱਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਫਸੇ ਦਾ ਹਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਥਾਣਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਯਤੀਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਾਈਂ ਮਰਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈ? ਉਸ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੁਜ਼ਲਮ ਮੈਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲੇ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਅਸਲ ਮੁਜ਼ਲਮ ਫੜ ਲਿਆ,
मुस्लिम मुस्लिम फड़ लिया, उसी हौसला करो, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬੇਗुनाह। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या लगती हैं आप? मैं उसकी खाला हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताएं, एक रिकॉर्डिंग भी आई है एसएचओ की जिसमें एसएचओ ये कह रहा है कि आपका लड़का बेगुनाह है और वो जमानत हो जाएगी, कोई मसला ऐसे नहीं कहा है। है, हमें भी ऐसे ही हौसला देता है। उस तो बाद पर्चे इसते उन्हें दसता है, उन्हें कह रही कि रात को 12 बजे उसने पर्चा काटा है। उससे पहले हमें कहता रहा कि आप 15 जमानतें ले आओ और हम बच्चा छोड़ देंगे, बच्चे का कोई गुनाह, हम बच्चे की जिंदगी नहीं। बच्चे की उम्र कितनी है? बच्चे की उम्र होगी कोई 22 साल होगी, 22-23 साल। हाँ 22-23 साल से बड़ा नहीं है। बदकिस्मती है जी, ये तमाम सिचुएशन है, फैमिली से आपको मिलवा रहे हैं, आपके सामने रख रहे हैं इस तमाम मामले को, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अगर इस फैमिली की बात दुरुस्त है तो यकीन माने चुल्लू भर पानी लेकर उसमें डूब मरने की जरूरत है जिम्मेदारान को। आज इस तख्ते लाहौर का हर राजा, निक्का राजा, बड़ा राजा, हर किस्म का सियासतदान है, ब्यूरोक्रेट है, आपका पुलिस मुलाजिम है, बड़ा पुलिस मुलाजिम है, छोटा पुलिस मुलाजिम है, एक लम्हे के लिए ये सोचे कि क्या आप अल्लाह से लिखवा के आए, क्या आपने और आपकी नस्लों ने हमेशा इन्हीं जिम्मेदारियों पर रहना है? आपके बच्चों ने कल इन्हीं गलियों में मुलाजमतें करनी है, नौकरियां करनी है, ये बात याद रखिएगा। मुमकिन है कि आपका अपना बच्चा, आपका बेटा, आपका पोता, मैं दुआ नहीं दे रहा ना बद्दुआ दे रहा हूं, मैं सिर्फ आपको एहसास दिलवाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर खुदा ना खास्ता कोई हराम खोर पुलिस मुलाजिम, हराम खोर सरकारी मुलाजिम उसकी जड़ों में बैठ जाता है इस जुल्म के बदले में, तो कहां जाकर मुंह दोगे, कहां जाकर रोवोगे? इससे पहले कि ये अजाब और बढ़े, मैं चाहूंगा कि बाकी फैमिली से भी बात करूं। ख्वातीन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मर्द जो अपने अजाब देख रहे हैं वो तो देखेंगे, इनकी जिंदगियां बर्बाद हो गई हैं, समझते हैं। कोई शह नहीं खा पी रहे, 2 दिन हो गया, ना रोटी ना पानी, कोई चीज नहीं साडी लंघ, ना मेरी बीवी खा रही, ना मैं खा रही, ना मेरे बच्चे खा रहे ने। ਅਸੀਂ ਬੇਨਾਕੇ ਸੀ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। इज्जत नाल नहीं खेड़ जाते हैं लोग कि हुण मोहल्ला अजीजो कारिब हर कोई ये समझ रहा है कि अरे मंशियात वे ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਮੱਲਾ ਗਵਾਈ ਦੇ, ਮੇਰੇ 4 ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਡੇਢ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਪਈ, ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਨੱਕ ਪੜਿਆ ਗਿਆ। यासर मुजलम ने छाड़ दिता, मेरे पुत्र ने फाड़ लिया, सामने भाग रहा है और ये मुलजम जो है इनके सामने भागा है, उनको नहीं इन्होंने पकड़ा, इन्होंने बच्चे को पकड़ लिया है, ड्राइवर को पकड़ लिया, जो मुजरम है वो भाग रहा है। एक गल दसा, उनके पीछे नहीं जा सकते, नहीं ना जाना ही नहीं, लत्तां टूटियां हुई हैं, बुरा ना मान, बताता हूं, सुन ले, होता पता है कि मुलाजमीन ने अपनी कारकर्दगी दिखानी होती है जी। जब कारकर्दगी नीचे जाने लगती है तो हम माशाल्लाह इतने अच्छे तो हैं नहीं कि हम काम करें और असल मुलजिम पकड़ सके, तो फिर किया क्या जाता है कि किसी बेगुनाह को पकड़ के बलि का बकरा बनाया जाता है। सिर्फ माल की कुर्बानी है ना, हराम खोरी का माल, जहाँ टनों के हिसाब से लॉरी फूक गए, वहां पर अगर 10 किलो पकड़वा कर एक बेगुनाह बंदे को सामने लाकर ड्रग डीलर साबित किया जा सकता है, तो क्या मसला जाए जो मुखबरी कर रहा है बंदा, उसको क्यों नहीं ये ट्रेस कर रहा है, उसको क्यों नहीं पकड़ रहे? नहीं, मुखबरी तो उनका अपना बंदा कर रहा है, उनका अपना बंदा कर रहा है, तो फिर उनको पकड़े, वो मुजरिम पकड़े जो इनके सामने भाग रहा है। इनकी लाते नहीं काम कर रही थी, उसके पीछे भागे। ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ ਰਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਕਸ਼ੇ ਸਵਾਰੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ सवारी की तलाशी नहीं ली जा सकती। ये बिल्कुल वैसे ही है जी नाज़रीन कि मेरे खिलाफ एक दफा कैंपेन स्टार्ट की थी जिसमें वो एक भोंडी सी कैंपेन थी। अब मैं ऑनेस्टली ये कहूंगा कि अगर आप एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफर कर रहे हैं, आपके साथ कौन बैठे हैं, आप एक बस में जा रहे हैं, आपके पास उसके आप जिम्मेदार नहीं है, पूरी दुनिया में सिस्टम चलता है, एक ड्राइवर ने सवारी बिठाई है, क्या वो पहले उसकी तलाशी का पोस्टमार्टम करेगा? तलाशी लेकर नहीं हो सकता। तो आपने तो पकड़ना था मुलजिम, वो आपकी नाक के नीचे से गया निकल। अब आप सोशल मीडिया पर कैंपेन चला रहे हैं कि जनाब पढ़ लिया पढ़ लिया पढ़ लिया। यार शर्म आनी चाहिए, को खुदा से डरो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप अहलिया हैं? जी, मैं उम्र की? जी बिल्कुल। कितने अरसे से आप उम्र को, आप अजीजा थी या शादी हुई डायरेक्टली? कितना अरसा हो गया शादी हुई? मेरी शादी को तकरीबन 1 ईयर हो गया। आप उसकी फैमिली से ही थी कि बाहर शादी नहीं हुई थी? नहीं, फैमिली से ही थी। कितने अरसे से इस फैमिली को जानती हैं? इस फैमिली को छोटे बचपन में इन्होंने, यानी कि जो मेरे देवर जेठ हैं बड़े हैं, वो इन्होंने हाथों में खिलाया है। यानी कि ये जो मेरे ससुर हैं, मेरी अम्मी के मामू हैं, सगे मामू हैं, हमारी काफ़ी ज़्यादा क्लोजिंग है, हम शुरू से जानते हैं इनको। कोई ऐसा दाग, कोई मामला, कुछ हमारे खानदान में किसी में भी ऐसा कोई दाग नहीं है। हमने आज तक कई थानों के
थानों की शक्ल नहीं देखी, क्योंकि हमारा कोई ऐसा तल्लुक ही नहीं है, ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है, ना ऐसी कोई FIR, ना ऐसा कोई जो पर्चा, कोई ऐसी चीज नहीं यानी है। थाने शाने से लेना देना ही नहीं है। हमें थाने के तो चक्कर ये लोग लगवा रहे हैं। अल्लाह आपके लिए आसानी करे बहन। अब मुझे बताएं कि आपको इस मामले का पता कब चला, क्या हुआ, कैसे आप तक इत्तला आई? हमारे तक इत्तला आई कि सुबह 8 बजे जब वो काम पे गए हैं, उन्होंने सवारी बिठाई है बत्ती चौक से, वो आ रहे हैं, आप खुद ये हिसाब लगाएं, जब बत्ती चौक से सवारी बिठाई है तो वो फाटक की तरफ से ही आएंगे, एक मोड़िया पुल की तरफ से तो नहीं आएंगे, इस रोल घाटी की तरफ से, रशिया सारा वो रशिया। तो उन्होंने उस पर्चे पे उन्होंने ये लिखा है, मैंने खुद पढ़ा कि वो इस साइड से आ रहा है, क्योंकि नाका उस साइड पे लगा है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को तो बीच में से निकालना है ना। हालांकि उस साइड से वो नहीं आए, उस साइड से वो नहीं आए, वो इस साइड से आए हैं। यहाँ हमारे पीछे जो यानी कि मेन आ जाता है ना, ये बंद रोड आता है, वहां से वो नीचे उतरे हैं। उन्होंने जो सवारी उसने आमिर रोड कहीं जाना था, वो नीचे उतरे, उनका ये घर है, उन्होंने सोचा मैं सवारी बिठाता हूँ, मैं आमिर रोड उतार के तो घर आ जाऊंगा। उन्होंने तो अपने लिए आसानी पैदा की, जबकि जब ड्राइवर है वो सवारी बिठा रहा है तो उसने सवारी का बैग तो नहीं चेक करना, नहीं, उसका ये हक तो नहीं है, ये आर्डर तो नहीं है, वो कर ही नहीं सकते। अगर वो करेंगे, वो कहेंगे भाई हमें तलाशी दो, तो सवारी बैठती है, नहीं बैठेगी, उन्हें तो रोजी कमानी है, रिज़्क़ कमाने निकलते हैं वो। ये अगर हम ये काम करते हैं, हम लवस है, तो हम किराए पे क्यों रहे, हम इतना रुले क्यों? हम अच्छा घर नहीं ले सकते, हम अच्छा खा नहीं सकते, हम अच्छा पहन नहीं सकते? अगर हमने यही काम करना तो हम रिक्शा क्यों चला रहे हैं, हम लोगों की नौकरियां क्यों कर रहे हैं? ये समझ नहीं आ रहा उनको। उन जो मुस्लिम है वो उन्होंने निकाल दिया, मेरे शोहर को फंसा दिया उसने। आपको पता है कि ये जो IG पंजाब आजकल है, या CCPO लाहौर है, आप उनकी बेटी हैं, आपको पता है इस बात का? उनके लिए कोई पैगाम देना चाहिए, शायद उनको कुछ समझ आ जाए कि उनकी पुलिस कर क्या रही है। कि जैसे मैं बेटी हूँ, मेरा शोहर है, मेरे सर का साईं है, वो मेरा खावंद है, ठीक है, सबके घरों में बेटियां, उन्होंने भी अपनी बेटियां बिहानी हैं, उनके भी शोहर होंगे। अल्लाह ना करे किसी भी बेटी पे ऐसी आजमाइश आए, अल्लाह ना करे किसी का शोहर ऐसे बेगुनाह हो के भी गुनहगार बने, अल्लाह ना करे किसी के घर किसी की माँ का बेटा ऐसे जुदा हो, किसी बहन का भाई जुदा हो। लेकिन खुदा के लिए मेरी अपील है वज़ीर आला पंजाब से, IG पंजाब से, मुझे इनका ज़्यादा तो पता नहीं है, मेरी उम्र इतनी नहीं है, क्योंकि हमने कभी इनका खबरों में सुना है, न्यूज़ में सुना है, इनका खुद का डंडी रोना ख़त्म नहीं होता। इन्होंने हमारा क्या करना है? कभी वो इमरान खान बैठ रहा है, कभी शहबाज शरीफ बैठ रहा है, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, ठीक है। मैं यही अपील करती हूँ, खुदा के लिए मुझे इंसाफ दिया जाए, मेरा शोहर बेगुनाह, उनको बाहर निकाला जाए, ये पर्चा खारिज किया जाए, उसको मुझे इंसाफ दिया जाए। मेरे खावंद को तो कभी उसने एक सादा सिगरेट होता है ना, वो भी उसने कभी नहीं यानी कि पिया। 10 किलो चर्स उस पर डाल दिए, इसके ऊपर 10 किलो चर्स डाल दिया है, ये तो सीधी सजाए मौत की केस बना दिए। तो उनके लिए क्या है? जिंदगी तो हमारी खराब हो रही है ना, उनका क्या जाएगा? किसी का कुछ नहीं जाना। जिस माँ का बेटा है उसको होगा, जिसका शोहर है उसको होगा, जिस भाई का बहन है, जिस औलाद का जिसका वो बाप है, जिंदगी उसकी खराब होगी। उनका तो कोई तल्लुक ही नहीं है। नहीं, इसमें एक काम हो जाएगा ना, आपको बता देता हूँ कि जो जालिम SHO है उसका थोड़ा सा कुछ दिन के लिए ग्राफ ऊपर चला जाएगा कि उसने 10 किलो चर्स पकड़ी है, बस यही तो वो इससे ऊपर चाहते हैं, कुछ नहीं होगा। यही तो वो चाहते हैं। वो सिर्फ अपनी अथॉरिटी बनाते हैं, क्योंकि उनके पीछे होते हैं वो सरकारी मुलाजिम होते हैं। हम लोग गरीबों को क्या, हम गरीब हैं। ये जो उन्होंने कहा है ना कि हाथ दिया तो वो उसने रोका नहीं है, उन्होंने हाथ दिया, मेरे भाई ने उसी वक्त रक्षा रोका है, उसने रोका है रक्षा। जब ये उन्होंने उस आदमी को उतारा है तो उसको चेकिंग किया, जब वो भागा है तो उसके पीछे मेरा भाई नहीं भागा, वो वहीं खड़ा रहा। उसने नहीं कहा भी मैंने नहीं भागना, मैं कोई चोर में भागूं, मैं जो भागूं ये हमारे गंदे नाले। यानी आपके भाई की यानी उम्र की उसका जुर्म ये है कि उसने कानून पर और इंसाफ पर अमल किया, और वो ये समझ रहा था कि मैं तो बेगुनाह हूँ, मेरा तो मसला उसने ना बैग अपने रक्शे से निकाल के फेंका, ना वो वहाँ से भागा, वो वहीं खड़ा रहा। क्योंकि ये हमारे मोहल्ले वाले जानते हैं हमें, उन्होंने कहा कि तुम भाग जाओ, लेकिन मेरे भाई ने कहा मैं बेगुनाह, मैं क्यों भागूं। नाज़रीन, दिस इज द सिचुएशन आपके सामने रखना चाह रहे हैं, और इस प्रोग्राम को करने का एक बुनियादी मकसद है कि वो चीजें कहीं कोई जिम्मेदार कल को ये ना कहे कि अगर मुझे पता होता कि मेरे नाक के नीचे मेरी जिम्मेदारी में ये सब कुछ हो रहा है तो मैं इंसाफ फराहम करने के लिए जान मार देता, मैं बड़ी कुर्बानी दे देता। तो आपके सामने रख रहे हैं जी कि अगर आपके पास कोई तवक्को है, आप कुछ कर सकते हैं, तो भाई दिस इज द राइट टाइम। एक फैमिली, ये पूरी फैमिली बर्बाद होने जा रही, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, मैं बिल्कुल छुपा के बात नहीं करूंगा। इस खातून का खामद है, अभी उनकी जिंदगी का आगाज हुआ था, इनको अंधे कुएं में फेंक दिया है। इस खातून का बेटा है,
یہ پورے علاقے میں اب صفائیاں دیتے رہیں گے کہ نہیں 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 ہمارے بیٹے جو ہے ہمارے خاندان ہمارا قبیلہ ڈرگز کا کام نہیں کرتا. اگر آپ کے اتنے ہی ذمہ داران ہوتے تو اس لاہور کا یہ پورا لاہور شہر جل نہ رہا ہوتا دھوئیں کے ساتھ. لیکن انفارچونیٹلی جل رہا ہے. رستہ جس رستے سے وہ آیا ہی نہیں ان کے مطابق اس رستے کو ایف آئی آر میں انڈورس کیا جا رہا ہے. آپ کے کیمرے مر گئے. یہ کیسا سیف سٹی ہے؟ آپ کیوں نہیں فوٹیجز نکلواتے؟ ثابت کریں نا یار کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. آئے میں کہتا ہوں آپ سچ بول رہے ہیں. ویڈیوز نکالیں ثابت کریں. کیا سواری اس نے بٹھائی نہیں؟ سر کے اوپر کیمرے لگے ہوئے ہیں. وہ کیوں نہیں نکلواتے؟ کہاں مر جاتے ہیں یہ کیمرے؟ یہ صرف جرم ہو جانے کے بعد اس کی فوٹیج نکالنے کام آتے ہیں. وہ بھی آپ کی مرضی کی. شرم آنی چاہیے. ملتے ہیں بریک کے بعد. میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ایک آڈیو آپ کو سنانی ہے جی. یہ متعلقہ ایس ایچ او کی ہے اور بات کرنے والے شخص جو ہے وہ مجید غوری ہیں جو کہ اس رکشہ یونین کو دیکھتے ہیں. اس آڈیو میں جو میں آپ کو سنوانے جا رہا ہوں باقاعدہ ایس ایچ او خود اس بات کو مان رہا ہے کہ عمر نامی لڑکا جس کو اریسٹ کیا گیا وہ بے گناہ ہے. یعنی وہ رکشہ ڈرائیور ہے. اس کا کوئی لینا دینا ڈرگز کے ساتھ نہیں ہے. لیکن انفارچونیٹلی اس کے باوجود بھی اس پر ایسا ایک بدنما داغ لگا دیا جاتا ہے, ایک پرچہ دے دیا جاتا ہے جس سے نکلنا شاید مشکل نہیں ناممکن نظر آ رہا ہے. صرف ایک صورت میں پاسبل ہے کہ پولیس کے ذمہ داران اس معاملے کو ٹیک اپ کریں اور اس کے سلوشن کی طرف چلیں. ایک لمحے کے لیے سنیے گا. منشیات نے جرا چلے لے کے گئے انہوں نے میں کہا خود میں سندا ہوں یہ بیان جی نے جس نے بے گناہ کرنا نہیں. جی جی منشیات وہ اگر بے گناہ نہ ہوئے تو میرے منہ پہ بجا مارے تو مجھے تو بیل ہونی ہے, بیل ہو جانی ہے. نہیں دہاڑے 8 دہاڑے کیوں ਉਹਦੀ ਬੇਲ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ? جناب محترم جس رکشے تے ڈرائیور تے آئے تے ਉਹਦੀ ڈرائیور تے آئے ڈرائیور چلا کے جو ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰਕਸ਼ਾ ਆਵਣਾ ਨਿਆ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਰਕਸ਼ਾ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ. ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਅਸਲਾ ਆਂਦਾ ਹੈ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ. ਜਿਸ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇਂਜਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਲ ਪਕੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਨਾਕੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਫਰੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਕੜ ਸਕੇ ਤੇ ਰਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਕੜ ਕੇ ਦੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਰਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ. ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ ਯਾਰ. وہ میڈیا نے جیل لائن پہ پھر ان نہیں روک سکتے نا. یار پڑھا سے یار رکشے ڈرائیور سے رکشے کو نہیں کسی بھی رکشے دیا تو بندہ نفسی ہے. ਨਹੀਂ ਨਿਆਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਈ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਾਲਮ ਆਦਮੀ ਹੋ. ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਰਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕੱਲ ਸੀਸੀਪੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਉਠਾਂਗੇ. ਸਾਡਾ ਸਬਦਾ ਦੇ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ. جی تو یہ گفتگو جو تھی یہ متعلقہ ایس ایچ او کر رہے تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ لڑکا بے گناہ ہے. اس نے تو سواری اٹھائی تھی, اس کا اس سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. لیکن ان کی ایک ہسٹری بھی ہے. ایک بار دوبارہ سے یہ آڈیو سنیے گا اور اس کے بعد مجید غوری جو ہسٹری یاد کرواتے ہیں ایس ایچ او کو اس کی کہ پہلے بھی اس نے ایسا ایک کام کر رکھا ہے. وہ کیا تھا سنیے گا. ਨਿਆਈ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਤੁਸੀਂ ਰਕਸ਼ਾ ਪਕੜ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਲੇਵਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਝੂਠਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਲਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਬੇਲ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗਾ. ਇੱਕ ਰਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਿਆਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਿਆਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ. ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਰਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ. ਉਹਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ. ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਕਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੱਸ ਜਾਂਦਾ ਔਰ 10 ਕਿਲੋ ਚਰਸ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੇਗੁਨਾਹ ਰਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ 10 ਕਿਲੋ ਚਰਸ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ. ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ, ਉਹਦੀ ਬੇਗਮ, ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਖਾਨਦਾਨ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦਾ. ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਹੌਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੋਸਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਕਸ਼ੋं पर मनशियात सप्लाई करता है. मेरी जरा गल थोड़ा मेरा भरा जी जी जेरे मेरे सब इंस्पेक्टर पर्चा देता है ना जी जी उस हलफ कुरान पे उसके बाद 15 बयान हल्की मैं उन्हें गिरवाए मैंने उन कल कलमा चुप के देता है भी मंशियात ने जी जी ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਇਹ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੁਲਵਾਇਆ ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਕਸ਼ੇ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀ ਜੀ
मैं दस्ती डिप्टी ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, एसपी ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। जी जी जी, तो बुनियादी मामला जिसमें मुतल्लिका SHO मान रहा है कि बंदा बेगुनाह है और ये ज्यादती हो रही है, जमानत हो जाएगी इसकी, लेकिन फिल वक्त उसको जेल भेज दिया गया है। क्यों? क्योंकि पुलिस ने जो FIR दी है उसमें कहानी ही उलट दी है। पुलिस के मुताबिक पुलिस को पहले रिक्शे की इत्तला हुई, उसने उसको ट्रेस करने के बाद उसका पीछा किया, पीछा करने पर जब रोकने की कोशिश की गई तो रिक्शा ड्राइवर जो कि बज़ाहिर बेगुनाह नजर आ रहा है, उसने रिक्शा नहीं रोका और उसके बाद पुलिस ने उनको इंटरसेप्ट किया और इंटरसेप्ट करने के बाद मुलजिम भाग गया, साथी और रिक्शा ड्राइवर फंस गया। यानी उनके अब के बयान के मुताबिक ये तमाम कहानी उमर नामी रिक्शा ड्राइवर के गले पड़ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितने अरसे से जानते हैं उमर को? उमर को मैं तकरीबन 2 साल से जानता हूँ। इससे पहले उमर के वालिद रिक्शा चलाते थे? इससे पहले उमर से यही रिक्शा इसका वालिद चलाता था। उनकी तकरीबन 2 साल पहले डेथ हो गई है। उनका ये रिक्शा अब उमर चला रहा है। अब वो घर का कफील है? अब वो घर का कफील है और ये बत्ती चौक में यूनिट है अवामी रिक्शा यूनियन का, मैं उसका सदर हूँ। ये मेरे पास उधर रिक्शा चलाता है। पुलिस कहती है कि उमर जो है वो ड्रग्स लेकर जा रहा था, इसका साथी फरार हो गया, उमर पकड़ा गया। क्या सच है क्या झूठ है? नहीं जी, ये सरासर झूठ है। उमर ने बत्ती चौक से एक सवारी आई है, उससे पूछा हाँ जी भाईजान जाना है। उसने बोला जी हाँ ये एड्रेस है, मोबाइल पे आप इससे बात कर ले, इस ड्रेस पे मुझे पहुंचा दे। जो हमारा देसी तरीका के यार राह नहीं पता गल करी, हाँ जी, मैनू इत्थे ले जा। ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣਿਆ ਉਮਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਮਰ ਰੋਡ ਤੇ ਲੈ ਆ। ਉਮਰ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਰੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਿਰਾਇਆ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਅਮਰ ਰੋਡ ਆ ਰਿਹਾ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। नाका लगाया सी? ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ, 3-4 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ। ठीक है। ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੋਕਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਵਾਰੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦੇ। ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਬੈਗ ਹੈ ਪਿੱਛੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਗ ਖੋਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਚਰਸ ਨਿਕਲੀ ਹੈ 10 ਕਿਲੋ। ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨੱਸ ਗਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਸੀ ਉਧਰ ਨੱਸ ਗਿਆ। ਇਹ पुलिस उनके पीछे नसी? ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। अच्छा। ਦੌੜਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਨਾ, ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਮੋਟੇ ਤਾਜ਼ੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਚੱਲ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਚੱਲ। अच्छा, घेर के ले गए? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਥਾਣੇ ਲੈ ਚੱਲ। ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹੀ ਚਰਸ ਰਿਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ FIR ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। अगर ये सच है ना नाजरीन, तो मैं ईमानदारी से बताऊंगा कि फिर अजाब का इंतजार कीजिए। अगर आपके रियासती इदारे इतने नाहंजार हो चुके हैं तो यकीन माने ये अजाब जो इसके आगे अब भी हमने बंद ना बांधा तो ये छोटा अजाब नहीं होगा, क्योंकि ये तो एक कहानी है ना। रोजाना परफॉर्मेंस दिखाने के नाम पर ऐसे घटिया हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं अनफॉर्चुनेटली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप उमर के दोस्त हैं, क्या लगते हैं? अजीज हैं, महल्लेदार हैं? क्या महल्लेदार हूँ। महल्लेदार कितने अरसे से जानते हैं? मैं उसको 10-12 साल से जानता हूँ। 10 किलो चर्स अगर वो लेकर जा रहे हैं तो उन्होंने तो कोटी छोटी कोई छोटी मोटी बन गई होनी चाहिए। मैं इस चीज को नहीं मानता क्योंकि उसने कभी सादा सिगरेट भी नहीं पिया लड़के ने। उसकी कोई ऐसी शिकायत, कोई मामला, तो कोई ऐसा कोई चक्कर नहीं है। और दूसरी बात, जब मैं उधर से आया हूँ ना तो मुझे पता चला है कि ये क्या ना मैं उमर इस तरह पकड़ा गया। तो मैंने कहा क्या हुआ है? उन्होंने बताया मुझे महल्लेदारों ने कि जी पुलिस वाले पकड़ने लगे उस लड़के को, तो वो कब्रिस्तान की तरफ दौड़ा है। जो मुलजिम था? जी, मुलजिम जो था, जो कब्रिस्तान की तरफ दौड़ा है। ये गए हैं पीछे पीछे से कईयों ने उसको क्या लड़के को कि तू निकल जाने का। नहीं, मेरा कोई कसूर नहीं है। हाँ जी, उसने कहा मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं क्यों निकलूं। वो वहाँ खड़ा रहा जब तक 10 मिनट तक पुलिस नहीं आई। 10 मिनट बाद जब पुलिस आई है तो जब वो खड़ा रहा और पुलिस उसको लेके तो थाने चलेगी। हम तो जाके उससे तो पर्चा देता है। हम उधर गए, हमारे साथ SHO की बात हुई। SHO ने कहा जी क्या नाम है, मैं पर्चा नहीं देता इसके ऊपर, आप लोग 10-15 गवाहियाँ लेके आए। हम गए, हाँ जी, स्टाम्प पेपर पे गवाहियाँ लेके आए। हम अपने महल्ले आए वापस, यहाँ पे स्टाम्प पेपर पकड़े, लड़कों से गवाहियाँ पकड़ी है हमने। जो जो उसको जानता था अल्हम्दुलिल्लाह सारी तकरीबन जानते हैं इनको, शरीफ लोग हैं ये लोग, ठीक है। जो जो उसको जानता था सारे दोस्तों ने मिल के गवाही दी। मैंने दी, मेरे दोस्त ने दी, फिर मेरे एक और दोस्त है उसने दी कि हमने गवाही दी कि ये लड़के इस तरह के नहीं, ये फैमिली इस तरह की है ही नहीं है। एक नहीं, ये फैमिली इस तरह की नहीं है। पुलिस वाले ने कहा मैं पर्चा नहीं दूंगा। जब 6 बजे 7 बजे के तकरीबन करीब हम उससे बात करने लगे SHO से, तो उसने कहा जी मैं पर्चा इसके ऊपर दूंगा खाली ड्राइविंग का,
ਅੱਛਾ ਕਿ ਇਹ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਐਲੀ ਜਾ ये कहा गया कि यानी उस टाइम भी ये खबर दिया कि जी ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ हमें कुछ ये नहीं कहा होगा। गया कि खाली ड्राइविंग का पर्चा देंगे जिसकी सुबह जमानत हो जाएगी। तो जब 12 बजे मैं FIR की कॉपी लेने गया अपने भाई के साथ अली के साथ के जाके देखेंगे कि FIR पे क्या लिखा है इन्होंने फिर हमें 9C का पर्चा डाल दिया 10 किलो। ਇੰਨਾ ਲਿਲਾਹਿ व इन्ना इलैहि राजिऊन। ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉल्लाह ਤੇ ਪਰਚੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ यार, वो तो तगड़ा आदमी सी, निकल गया। ये कैसे निकलेंगे? मुझे आप ऑनेस्टली बताएं, पुलिस ने जो करना था इनके मुताबिक अगर इनका मौकफ दुरुस्त है तो पुलिस ने तो गंद मार लिया, तो राना सनाउल्लाह था निकल गया, ख्वारी काट रहा, पर्चा तो भी है। लेकिन मैं राणा साहब से बात करना चाहूंगा कि राणा साहब ध्यान करो, वजह क्या है कि यार एटलीस्ट इस वक्त आप स्टेट मिनिस्टर तो है ना, आपके नाक के नीचे वो कुछ हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? शुक्र अल्लाह। कितने अरसे से जानते हैं उमर को? उमर को 10-12 साल से जानते हैं, इसी इलाके में रहता है, शरीफ आदमी है। कोई ड्रग्स बेचता है? अल्लाह माफ करे, ऐसा कोई सीन नहीं है, कोई बात नहीं है। वो तो सादा सिगरेट भी नहीं पीते, ना सुपारी खाते, अपने काम से काम, सुबह जाते हैं शाम को अपनी मेहनत मजदूरी करके आते हैं। इसकी माँ का क्या बनेगा, इसकी बीवी का क्या बनेगा? बहुत परेशान है वो, बहुत ज्यादा ही परेशान है। शरीफ आदमी, उनके साथ ऐसा कभी सीन ही नहीं हुआ। अगर ऐसी चीजें खुद पुलिस और इदारे करने लगे तो एतमाद इन पर रहेगा? कोई भी नहीं रहेगा। और अगर नौजवानों का, इस कौम का एतमाद खत्म हो जाता है अपने इदारों से, तो नतीजा क्या निकलेगा? बुरे नतीजा निकले, बर्बाद हो जाएंगे हम लोग। जी बिल्कुल ऐसे ही। अनफॉर्चुनेट। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, क्या नाम है आपका? अली रजा। अली, आपने कोई उम्र को देखा कोई नशे नुशे करते, कोई ड्रग्स लेकर जाते हुए? मैं उसका भाई हूँ, रिक्शा चलाते हैं। ज़ाहिर भाई हैं तो आप तो सबसे ज्यादा आगाह होंगे। नहीं, वो कभी ऐसा किन्ने को मानो ने चर्च टोटू ली हुई बेच नहीं, बूच ली कभी है? ऐसा काम किया ही नहीं मेरे भाई ने। मेरा भाई तो डरता ही बहुत है पुलिस वालों से, सिर्फ वो घर से मजदूरी करने गए हैं, वो फंस गए हैं, बस ऐसा काम हुआ है, बस उसके साथ नजायज हुआ। यानी ये तलवार ऐसी तलवार है जिसको सोचने के बाद मुझे ये लग रहा है कि आज के बाद आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे अगर सफर करना है तो पहले नाल दी सवारी दा भी पुलिस तो जाके सर्टिफिकेट लोगे, जेड़ा मेरे नाल बैठा है कि तहत नहीं कोई 2 नंबर, बिल्कुल, नहीं तो आप उसके भी जिम्मेदार हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, गलत हुआ, नजायज हुआ मेरे भाई के साथ, बस यही है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। कौन देगा इंसाफ? कोई मेरी वालदा बहुत बीमार है, रात भी हॉस्पिटल में थी टेंशन से, ब्लड एक बात प्रेशर आपको की, शुगर की बताऊं? मरीज हैं वो। मेरा दीन कहता है कि जब इंसाफ ना हो किसी मुआशरे में तो फिर चाहे जो मर्जी हो, हमारे पास तो इंसाफ नहीं है, नहीं मिलता। मैं इंसाफ से किसी का यकीन नहीं उठाना चाह रहा, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि भाई हमारी जिम्मेदारी है, इंसाफ नहीं है, होता तो आज आप यूं तकलीफ में ना खड़े होते। बिल्कुल ऐसा कोई ही। पैगाम दे दे किसी जालिम को, शायद उसको में कोई रमक बाकी हो हिदायत की। ऐसा ही है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब इस बात का नोटिस लें और चीफ जस्टिस साहब भी इस बात का नोटिस लें, हमारा बच्चा बेगुनाह है, उसे रिहा किया जाए, बस इसकी इतनी मेहरबानी होगी। अच्छा जी, ये नौजवान जो है वो चाहता है कि नोटिस लिया जाए इस मामले का, लेकिन नोटिस कौन लेगा मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम, आप भी भाई हैं? जी सर। बड़े भाई हैं? जी बड़ा भाई। यार देखने में आप लोग बड़े मुअज़्ज़ज़ फैमिली लग रहे हैं, शरीफ लोग लग रहे हैं, आपका पूरा मोहल्ला भी ये कह रहा है, क्या हो गया, ये जुल्म क्यों आपके गले पड़ गया? बस कोई समझ नहीं आ रही। अब क्या करेंगे, पुलिस क्या कहती है? पुलिस तो कुछ नहीं कहती, पुलिस ये कह रही थी भी हम बच्चे को पकड़ के लाए हैं तो बच्चा आपका बेगुनाह है, लिहाजा हमको हल्फिया बयान स्टाम्प जो होते हैं ना 15 आपने दे दिए? हाँ जी दे दिए, तो आप बच्चा अपना ले जाए। उससे नु फिर गुनाहगार करता? हाँ जी, जो तो 15 स्टाम्प करके SHO साहब ने पेश किए ने, SHO ने कहा जी मैं तुसी थोड़ी देर तक आयो बच्चे नु लै जाओ। उस तो बाद पता चलिया जी उन्हें कहा जी मैं पर्चा कट देता हुआ बच्चे थे। यानी अगर आपके इलाके का SHO नाहंजार है, जालिम है, तो वो किसी की भी इज्जत के साथ खेल सकता है। जी ऐसे ही है। किसी भी खानदान को तबाह कर सकता है। ऐसे बिल्कुल। किसी भी माँ बाप की तरबियत को खूब खाते कर सकता है। जी जी, मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, आप बहुत अच्छी बात। कोई पैगाम दे दे SHO साहब के लिए, जाहिर है उन्होंने भी टब्बर है, उन्होंने भी खानदान कबीला है, वो भी कोई सोचते हैं। SP साहब DSP साहब को काम है, हमारा भाई जो है बेगुनाह है, लिहाजा उसको रिहा किया जाए। हम लोग तो इतने जोगे भी नहीं है जी, हम लोग ये काम करते होते तो मकान किराए पे लेना था हमने, ठीक है, हमारे घर में तो। अगर ये नौजवान और ये लोग यहाँ के इलाके की ख्वातीन सच्ची हैं तो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि शर्म का मकाम है पुलिस के लिए। पुलिस के लिए बहुत बड़ी, मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं कि आपने अपने चेहरे गंदे कर लिए हैं, अभी भी वक्त है। वो कहते हैं ना पंजाबी के डुलिया बेरा दा कुछ नहीं गया, अभी भी संभाला जा सकता है। चलते हैं जी थाने, और शहंशाह आलम जहां पना मोहतरम जनाब किबला SHO साहब के हजूर उनके दरबार जाके हाजिरी देते हैं
اور ان سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بادشاہ سلامت کی ہو گیا ہے, اینے ناراض ہو گئے ہو, یا افسران دا تو بوجھ ڈاڈا آ گیا سی کہ قبر برباد کرتا جائے. سمجھتے ہیں ان کی کہانی انہی کی زبانی میں. ایک بار پھر سے خوش آمدید. obviously پولیس کو میں بہت ریسپونسبل مانتا ہوں کہ اگر وہ اپنی ذمہ داری درست انداز میں ادا کر رہے ہیں تو they are adding the value to the society. لیکن اگر وہی ذمہ داران, جن کو میں شیر کی کھال والے ذمہ داران کہتا ہوں, وہ اپنی ذمہ داری میں کہیں نالائکی اور کوتاہی کر جاتے ہیں تو یہ معاشرہ بربادی کے ایک ایسے اندھے کنویں میں گر سکتا ہے جس سے نکلنے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. ایس ایچ او شاد باغ ہمارے ساتھ موجود ہیں سیف اللہ نیازی صاحب. سیف اللہ صاحب, سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. یہ واقعہ ایک ایف آئی آر ہمارے بھی سامنے موجود ہے, آپ بھی اس کو دیکھ چکے, آپ کے ہی حکم پر یہ ایف آئی آر بھی ہوئی. اس کی اصل حیت کیا ہے اس معاملے کی؟ السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم. یہ جرا منشیات پرچو ہے حلفن میں اپنی پولیس پارٹی دے قرآن ہاتھ رکھن واسطے تیار ہوں. جو منشیات برآمد ہوئی ہے سیم یہ منشیات رکشے جو برآمد ہوئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. بیگ دے وچ سواری نس گئی ہے. اے منشیات سواری دی سی یا رکشے ڈرائیور دیاں سن؟ سواری دی. اچھا, رکشے ڈرائیور دا کوئی تعلق نہیں؟ رکشے ڈرائیور دا کوئی قصور نہیں. وہ ایک قصور ہے جرا وہ مطلب والدہ بندہ نس گیا تو وہ رکشے چ برآمد ہوئی ہے. جلے رکشا پولیس پارٹی روکا ہے بندہ نس گیا, یہ مطلب والدہ تھوڑا جا فاصلہ مارن لگا, یہ رک اس کو پولیس قابو کر لیا. وہ پیچھے پولیس گئی, وہ گستانہ گلیاں بڑھ گیا, قبرستان میں نس گیا. قبرستان نس گیا, پولیس پیچھے پیدل بھجی. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کو پوچھا گیا بھی کہندی یہ کون ہے, یہ سکا میں جاندا نا. ایک دو بندے نے فون کیتے باسط پٹھانا میں بات فلانی جاتے. پہلے میں نے آخا جانی پی سی او کو لا دو, اس کے بعد آخا عامر روڈ تے, بعد میں نے آخا شادی حال دے کول. نہیں صاحب مینوں ایک گل دسو, ایک گل تے تھوڑی ایف آئی آر بھی بول رہی ہے جڑی تسی دتی ہے. جی مسئلہ ہے میری پریشانی ہے یہ کہ میں یا تسی خدا نہ خواستہ اسی کسی پبلک ٹرانسپورٹ سفر کر رہے ہیں, سیف اللہ نیازی سفر کر رہے ہیں, سیف اللہ نیازی کا بیٹا سفر کر رہے ہیں, میاں عمران ارشد کر رہے ہیں, اس کا کوئی عزیز سفر کر رہے ہیں, تو ہم گارنٹی تو نہیں دے سکتے کہ میرے ساتھ والی سواری کون ہے اور کیا کر رہی ہے. اسی طریقے سے اگر میں آپ کوئی ٹیکسی چلا رہے ہیں اور آپ کوئی پبلک ٹرانسپورٹ چلا رہے ہیں, رکشہ چلا رہے ہیں, ہم قانون کیا کہتا ہے کہ ہمیں پہلے سواری کا سامان نکلوا کے اسے کہنا چاہیے کہ بھائی کٹ کھول اپنا بستہ سانو دکھا. کیا ایسی پالیسی ہے؟ حالات واقعات ویندے پین اس مطابق تا جو بس ڈرائیور یا کنڈکٹر ہوئے بیگ نو چیک کرے, رکشے ڈرائیور دا کام ہے کو بمب تا نہیں غلط ہے. یہ حالات واقعات ویندے پین. پھر تو بعد یہ ساری تصدیق تو بعد جی ایف آئی آر میرے پولیس پارٹی دیتی ہے اس کوئی میلافائڈ کو نہیں. نہیں میں تو کہہ نہیں رہا, میری میلافائڈی کیا ہے میں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں جو میرے نزدیک ہے, اور میں اس کو ایک سیریس نیچر کی میلافائڈی سمجھ رہا ہوں. اتنی سیریس نیچر کی کہ آپ خاندان تباہ کر سکتے ہیں, وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن اس سے پہلے میرا ایک سوال ہے نیازی صاحب, آخری دفعہ زندگی میں اب تو ماشاءاللہ سے بڑے افسر ہو گئے تے اللہ نے بڑیاں برکتاں دیتی ہیں, اور تو گڈی چاہیے دی تو ایک ٹیلی فون تے آ جائے گی, سواری چاہیے دی گھر بھی کھڑی ہوئے گی. کنا عرصہ پہلے آخری دفعہ تسی پبلک ٹرانسپورٹ تے سفر کیتا, رکشہ ہو گیا, کوئی ٹیکسی ہو گئی, کنا عرصہ پہلے, کوئی سال 5 سال 10 سال؟ کئی دفعہ کیتا ہے. مطلب والدے جلے بیگ ہونے تے جلے سیانے ڈرائیور کنڈکٹر ہونے تو بیگ چیک کر کے رکھ دے میرے وچ کوئی غلط چیز نہ ہوئے. گل کر رہے ہو پاکستان وچ ایسا نہیں ہوندا. یہ ہوندا نہیں. ایک رکشہ ڈرائیور تسی سواری گئے ہو, تھانوں کہے کہ سیف اللہ نیازی صاحب کھولو آپ دا بستہ تے پہلے وکھاؤ, اس تو بعد رکشہ چڑھن دیاں گا, تسی اندر رکشے بیٹھو گے نہیں بیٹھو تے بھوکا بنا کر جائے. مطلب والدے یہ ٹھیک ہے جرا اس دی غلطی ہے. کیا غلطی ہے؟ غلطی دی یہ کچھ اس کو مطلب والدہ جیسے پتہ لگا کہ بندہ مشکوک ہے یا مال ہے, کیسے اس کو پتہ چلے گا کہ مشکوک ہے؟ مطلب والدہ ادھر ڈرائیور دے اتنا کام تھا نہیں, یہ جو بار بار اس نے پھردا ودا فلانی جاتے کہنے لاونا ہے فلانی. ایک بندہ لاہور نہ ہوا ساڈے لے کلچر ہے کہ ٹیلی فون پھڑائی دے گا, اے بکاؤ اپ دا فون ذرا, تسی رکشہ ڈرائیور ہو, میں لاہور سواری آیا, میں کہنا پائن اے پھڑو پکڑو نا, میں کہنا جی اے ذرا راہ سمجھا دیو نا, تسی کی کرو گے, راہ سمجھو گے, اسے دے مطابق لے کے جاؤ. جرے مطلب والدہ منشیات فروش ہونے وہ سارا دیکھ دین بھی یہ پولیس کھلی ہے, یہ پولیس کھلی ہے, وہ بڑے پولیس نال بھی ایکٹیو ہونے.
ਇਸੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਿਕਲ ਹੀ ਵੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਬਾਸਿਤ, ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਬਾਸਿਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਫਰੋਸ਼। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵੇਖਿਆ? ਇਹਦਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹਦੇ ਘਰ ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਯਾਨੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਫਰੋਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ ਫਸਾ ਗਿਆ। ਆਪ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਫਸਾ ਗਏ ਤੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਸ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਉਸੇ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਇਸ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਾਥੀ ਨਸ ਗਿਆ ਰਿਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਿਆ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ? एक ड्राइवर है, एक मुलजम है। ड्राइवर को आपने FIR में साथी कैसे? तफ्तीश के बाद मतलब मराइल पता लगता है बट ड्राइवर का कसूर। हाँ वही कह रहा हूँ ना। FIR तफ्तीश हो गई है कि आपने उसको साथी डिक्लेयर किया? ये FIR कटोण दे कोई जुर्म को नहीं। अच्छा, कोई जुर्म नहीं। मतलब उस तो बाद जेले ओदी तफ्तीश होती है उस तो पता लगता है। तस्वीर दिखाएं। पता लगता है ये मुलजम बेगुनाह है ते समान उस है ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਪੁਲਿਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੰਗ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ पेज तो एक अपलोड होती है शादमान पुलिस के इंसदादे मंशियात फरोशी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। थले तस्वीर लाते हो, उस बंदे का चेहरा भी विखाते हो, तुसी कुर्सी ते माशाअल्लाह बैठे हो, अगे ड्रग्स पईयां ने, उस बंदे नूं हथकड़ी लगी है। थले दूजा फिकरा की लिखा है मंशियात फरोश गिरफ्तार, लाखों मालियत की 10 किलो चरस बरामद। तस्वीर तुसी उस बंदे दी विखा दी है गिरफ्तारी ते ए बंदा ते मंशियात फरोश है ही नहीं। तुसी आप कह रहे हो गिरफ्तारी इदी तो हो गई सर। ए मंशियात फरोश है पहले इदी FIR तो मंशियात फरोश दे दे कर कोई नहीं लिखा है। FIR ते आपने पब्लिक में उसको गंदा कैसे? पब्लिक ये मीडिया कर देता है ते सारे ने में कोई आसी तो मतलब नहीं। तुसी ठीक कीता, थोड़े पेज तो है जी, आपके पेज से हुआ है। मंशियात फरोश आपने अरेस्ट नहीं किया, जिसको आप खुद बेगुनाह समझ रहे हैं और कह रहे हैं उसको आपने मंशियात फरोश करके उसकी ऐसी तैसी कर दी। उसके घर खानदान कबीला मुंह छुपाता फिर रहा है। किसका असी तो बकायदा ਉਹਦਾ ਪਿੱਛੂ ਹੈ तो उन्होंने आख्या भी ਇਹਦਾ ਰਕਸ਼ੇ ਦੀ ਸੁਪਰਦਾਰੀ ਹੋ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਰਕਸ਼ੇ ਚ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ठीक है, ਇਹ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਹੱਥ में रखा है। मंशियात इसको आपने मंशियात फरोश कैसे कह दिया? वो मंशियात फरोश और मीडिया अगर चला देते हैं, मीडिया ने नहीं चलाया सर, आपने। देखें, ये देखें, ये किसका पेज है ऊपर? लाहौर पुलिस ऑपरेशन विंग्स आपके पेज पे लगा हुआ है। आपने मंशियात फरोश का साथ तुसी भी बैठे जनाब, मतलब क्या है, गलत है, सही है, इसको ठीक किया जा सकता है। ये तफ्तीश के बाद पता लग सी ये कितना ज्यादा फॉल्ट है या नहीं। तो आपने उसको मंशियात फरोश कैसे रजिस्टर करवा दिया? उनका खानदान है, उनका कबीला है, उस तो बाद उन्होंने सारा दे बयान अल्फी उन्होंने दिते हैं, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਈ मंशियात इजी नहीं है ना। इस ड्राइवर इसकी नहीं है, इसके इल्म में भी नहीं है। इल्म का नहीं पता, वो अल्लाह बेहतर जानता है। तफ्तीश करती पई है जेरे इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मंशियात से तफ्तीश करती ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਹਲਫੀ ਆਦੇ ਪੈਣ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦਾ ਬਿਆਨ ਹਲਫੀ ਦਿੱਤੇ हैं ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਖਿਰ ਕੋਈ ਵੈਲਿਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ FIR ਠੀਕ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। FIR ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਮਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸੀ, तो ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੋਵੇ ਸੀ। ਮੇਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤਾਂ ਇਹਦਾ पठान है बासित पकड़ा गया। बासित के पीछे टीमां चढ़िया हुई। कब तक पकड़ा जाएगा इंशाल्लाह? पुलिस मतलब तारा के वो सारी ड्यूटी शामिल है। पुराना रिकॉर्ड ही आप पुराना रिकॉर्ड जाता है। रिकॉर्ड की सामने आया मंशियात फरोश है, लिस्टेड है ये मंशियात किसी रक्षा दे आने दे, हर पासे आने दे। मुझे मैंने तो 5 दिन हो गए, मैं तो मतलब रिसेंटली आया ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੋਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਚ ਹੈਗੇ ਸੋ ਉਹਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਬੱਲਾ ਆਲਮ ਝੂਠ ਹੈ ਸੱਚ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਫਲੇਵਰ ਪਵਾਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਥਾਣੇ ਤੱਕ ਲੈ ਚੱਲ ਸਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਆਵਾਮ ਲੈਂਦੀ ਰਵੇ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਲੈਂਦਾ ਰਵੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਫਿਰ जिस बंदे ते इल्जाम ले रहे हैं उन्हें अपनी खबर बनावनी होती झूठा काम। नहीं अल्लाह माफ करे, आपकी कॉल रिकॉर्ड ना मैं फ्लेवर वाला दा मैं तो जिथे ऐसे जो लगदा ना भाईजान, मैं आदा कोई जुर्म ना होवे, गरीब बंदे ने कुर्सी दो, शरीफ बंदे दी इज्जत करो। अगर सवाल नहीं सुनो, अगर आखिरी सवाल ही अगर ये FIR दे विच मैं ज्यादती जुल्म मेरी पुलिस करना होंदा ते ड्राइवर ते पैंदे इस वादे मतलब वाले इंशाल्लाह जेड़ा ड्राइवर है ये इंशाल्लाह अफसरां दे सारे नोटिस च DSP साहब SP साहब ये इंशाल्लाह दे बयान हल्फियां दी ये ड्राइवर फारग हो सी। बड़ी गल है, क्यों फारग हो सी? किसी नाल गरीब नाल जुल्म ना होवे, वो मंशियात फरोश है। FIR दे विच अगर मेरी पुलिस पार्टी इस ड्राइवर ते मंशियात पैंदी ते असा जुर्मेदार असे और जो रक्षा वाला लेकिन पब्लिकली तो छुपा दी ना। मेरी रिक्वेस्ट आखिरी एक है जी, पब्लिक एक समझण दी गल है सर, समझण दी नहीं। लिखा है कि मंशियात फरोश गिरफ्तार ते उत्ते फोटो दी ला वो लग गई है ठीक करा जी।
ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾ ਉਹ ਨਾ ਅਸਾਂ ਲਲਵਾਈਏ ਤੇ ਨਾ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਲਵਾਉਂਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਮੇਰੀ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਮਨਸ਼ਿਆਤ, ਇਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਈ ਦੀ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਬਲਿਕਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਸको ਠੀਕ ਹੀ ਕਰਵਾना। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਇਸ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਅਸਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਫਿਰੋਸ਼ ਹੋਣੇ ਨਾ ਜਨਾਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ रक्षा लगे और गड्डियां भी लगी आई होनी। मैं हकीकत कर अंदाजा है, ये हम देखते हैं, अंदाजा नहीं, प्रैक्टिस है ना दी। अच्छा, ये प्रैक्टिस है। उस तो बाद तफ्तीश के मराहल तो बाद पता लगता है। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਸਰਸਾਈ ਵੀ ਚਰਸ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟੇਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅਗਰ ਇਸ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਇਬਰਤ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਿਆਨ ਹਲਫੀ ਦੀ ਲੈਂਦੇ ਪੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਅਸਾਂ ਐਫਆਰ ਲਿਖਿਆ ਉਸਾ ਕਿ ਬਾਸਤ ਪਠਾਨ ਦੀ ਆਈ, ਅਸਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੀ ਪੁਲਿस पार्टी पर्चा देता है। सैफुल्लाह नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे जी, एंड आई एम रियली ऑनर्ड कि उन्होंने हमें वक्त भी दिया और हमारे कुछ सख्त सवालात भी थे, उनका सामना भी किया। मैं बताना चाहूंगा कि अभी बिल्कुल साथ वाले कमरे में डीएसपी साहब भी मौजूद थे और वो ये कह रहे थे कि यार आप शराब की एक बोतल जो है उसके ऊपर भी अगले बंदे को माफ नहीं करते हैं, तो ये तो 10 किलो चर्स है। तो मैंने वहीं उन्हें ये बात कही थी और मैं सैफ साहब के पास बैठ के ये बात कह रहा हूं कि इस 10 किलो चर्स से नाउजुबिल्लाह हमारा कुछ लेना देना नहीं है। इसमें जो बंदा पकड़ा गया है, जिस बंदे को सोशल मीडिया पर एक ट्रायल शुरू कर दिया गया पंजाब पुलिस की जानिब से, लाहौर पुलिस की जानिब से, जिसे ये नजर आता है कि खुदा न खास्ता वो मंशियात फरोश है, ये जुल्म हुआ है। इसको ठीक करने की जरूरत है ताकि जो असल मुजरिम है और असल जालिम है उसको निशान इबरत बनाया जाए और जो बेगुनाह हैं उनकी इज्जतों के साथ ना खेला जाए। अल्लाह करे कि इस तमाम तर इन्वेस्टिगेशन के बाद जो जालिम है वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचे, जो मजलूम है उसकी इज्जत बहाल हो। के मुताबिक इंसाफ मिलती इस ड्राइवर को, अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह। नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं इंशाअल्लाह मिलेगा। आई एम प्राउड ऑफ यू। बयान हल्फी के आ गए, एफआईआर में भी इसके साथ ज्यादती ना हुई है, ये भी पढ़ लें। लेकिन नहीं सोशल मीडिया ये चला रहा है, ये आप चला भी दे रहे, हमने चलाया नहीं, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੇਜ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋ ਗਈ इंशाअल्लाह, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਇਹ अल्लाह ਨੂੰ मंजूर होया। चले जी, अल्लाह करे कि ऐसा हो। और मैं अगर ऐसा होगा तो मैं ऑनेस्टली पहले ही सैफुल्लाह नियाज़ी साहब का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि ये जालिम के खिलाफ मजलूम के साथ खड़े हैं। इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।